हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस, यानी यहाँ पर सोशल साइंस के जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, इकोनॉमिक्स का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। और यहाँ कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम व्यू से जो ये क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट व्यू पे रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्लास 9 CBSE NCERT social science here. The next question arrive here that is important. Give a very account of interstate disparities of poverty in India. You know that is important. Very account of interstate disparities of poverty in India. You know that is important. Proportion of the poor people is not the same in every state. The poor people is not the same in every state. Reasons first of all here, in 20 states and union territories, the poverty ratio is less than to national average. You know that is important. 20 states and union territories, their poverty ratio is less than national average. That's important here, national average. You know that the state is a number is increasing, but here 20 here, there is a 20 states only is given here. In the states of Odisha, Bihar, Assam, Tripura, Uttar Pradesh, poverty percentage is more than 35%. You know that this is important. There is a main state is here. Average percentage of poverty is here: Odisha, Bihar, Assam, Tripura, Uttar Pradesh. There is an important state. There is not a decrease here, poverty line here. So poverty is a serious problem in the states. In those states, there is a poverty serious problem in this state. Along with the rural poverties, urban poverty is also high in this state. There's a rural poverties, urban poverty is also is high in this state here. Well, in the state like Kerala, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, there is a significant decline in poverty. That's important here. There is a state like Kerala, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, there is a significant decline in poverty. You know that there is a most important question for the MCQ here. There is a poverty line in India. The state like Punjab and Haryana has succeeded in the reducing poverty with the help of the high agriculture growth rates. You know that is important. The Punjab and Haryana succeed. That is the a poverty line because he was the use. They help the high agriculture growth rate here. That's important. In a West Bengal, land reform measuring have a help in a reducing of poverty. West Bengal is a land reform measure to help in reducing poverty here.
यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 9वीं NCERT CBSE के अंतर्गत सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमारा आया है, जो कि अगला है। और अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है कि भारत में गरीबी की अंतर राज्य असमानताएं के संक्षिप्त विवरण देना है। क्वेश्चन साफ है कि भारत में गरीबी का जो अंतर्राज्यीय, हमें जो यहाँ पर गरीबी बताना है वो अंतर्राज्यीय असमानताओं को बताना है कि राज्य के अंतर्गत बताना है, किस राज्य में कितना है, किस राज्य में कैसा है, किस राज्य में क्या है। तो क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा कि अंतर राज्यीय असमानताएं। देखा जाए तो हर राज्य में गरीब लोगों का अनुपात एक जैसा नहीं है। किसी क्षेत्र में गरीबी अधिक है, किसी क्षेत्र में है ही नहीं, और किसी क्षेत्र में तो कहते हैं सर से ऊपर बह रही है। तो गरीबी रेखा की यहाँ कमी नहीं है। और कहीं कहीं तो लोग फर्जी कार्ड बना बना के खुद अमीर होने के पश्चात भी खुद को गरीबी रेखा से नीचे जो है कार्ड बना लेते हैं। इसमें पारदर्शिता नहीं है। मैं एक बात साफ आपको कर दूं कि भारत में जो गरीबी रेखा की आकलन की जा रही है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। आज अच्छे क्लास लोग भी जो है गरीबी रेखा के नीचे कार्ड बना लेते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अब देखिए, राष्ट्रीय औसत जो दी गई थी उससे भी कम है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यानी देखा जाए तो 20 राज्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था है, और बाकी जो शेष बच गए राज्य उनमें गरीबी रेखा अपनी चरम सीमा पे है। और देखा जाए तो उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों में गरीबी का प्रतिशत 25 से अधिक है। अब देखिए, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में जो गरीबी की प्रतिशत है वो 35 से अधिक है, यानी यहाँ पर गरीबी रेखा अधिक है। अंततः इन राज्यों में गरीबी एक गंभीर समस्या पैदा करती है, और इस राज्यों में गरीबी जो कहते हैं ग्रामीण गरीब के साथ साथ शहरी गरीबी भी अधिक है। देखा जाए तो उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्यों में कहते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गंभीर समस्या पैदा कर चुकी है गरीबी रेखा का, और इन क्षेत्रों में गरीबी रेखा की संख्या आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है, और ये सरकार के लिए सबसे बड़ा सर दर्द है। अब ये किस कारण से यहाँ बढ़ रही है, इस बात को सरकार कभी एनालाइज नहीं करती है। अगर एनालाइज किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाली होगी, लेकिन कोई भी जो है सही रूप से इसका जो है आंकलन नहीं करती है। कहते हैं बिहार राज्य के मंत्रियों ने तो ज़रूर वहाँ पर जो है सर्वे करवाई थी, लेकिन वो जाति के अंतर्गत करवाई थी, गरीबी के अंतर्गत नहीं करवाई। और मैं आपको साफ क्लियर बता दूं, वास्तविकता में कोई चीज़ आज के समय में होना संभव नहीं है, तभी हमारा आंकड़ा जो होती है गलत रहते हैं हर क्षेत्र में, और ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है लापरवाही साबित होती है। देखा जाए तो जबकि केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यानी देखा जाए तो केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट, यानी देखा जाए तो यहाँ हद से अधिक जो है गरीबी रेखा में गिरावट आई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है, और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम व्यू से भी। आगे देखें तो पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि विकास दर के मदद से गरीबी कम करने में सफल रहे हैं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में उच्च कृषि विकास दर की मदद से जो है गरीबी कम करने में काफ़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन देखा जाए तो आज पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र जो हैं इनके कृषि क्षेत्र बिल्कुल ही कम होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? शहरीकरण। कहते हैं शहरों के आसपास जितने भी जगह थे, जितने भी कृषि योग्य भूमि थी, सबको सरकार ने जो है बेच के खा गए। तो ये जर्नल सी बात है। हम ये बात तो ज़रूर देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा में जो है उच्च कृषि विकास के दर के कारण गरीबी कम करने में सफलता मिली है, लेकिन जर्नल सी बात है ये सफलता काफ़ी दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी। कारण क्या है कि जो उपजाऊ भूमि है उनको इन्होंने नष्ट कर दिया है इन क्षेत्रों में। तो ये सरकार की सबसे बड़ी जो है नाकामयाबी ही यहाँ पर साबित होता है। इवन देखें तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार
उपायों से गरीबी कम करने में काफ़ी मदद मिली है। यानी पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार किया गया है और इस कारण से गरीबी कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी ये सिर्फ एक दिखावटी बातें हैं, वास्तविक और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आते हैं। कहते हैं दोस्तों ये सब बातें सिर्फ लोग किताबी बातें रखते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में जाकर देखोगे तो ये ऐसा कुछ भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहते हैं आज देश जो है देश से बेहतर बनता जा रहा है, बेकार से बेकार जो है लोग बनाते चले जा रहे हैं। आए दिन तरह तरह की समस्याएं हमारे देश को जो है चौंका रही है। तो इन कारण से जो है गरीबी रेखा ख़त्म नहीं हो रही है और फ्यूचर में भी होना नहीं है, क्योंकि गरीबी से तो सरकार की राजनीतिक चलती है। गरीबी ख़त्म हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे तो सरकार की भी गिर जाएगा। इसलिए सरकार कभी भी गरीबी रेखा ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि इनका जो वोट बैंक होता है वो गरीब लोग ही वोट बैंक बनते हैं। तो ये तो सच्चाई है जिसको मैंने बताना अपना फ़र्ज़ समझा। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर लगा है तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ करेगा। और आपको तो पता ही होगा कि हर समय कुछ ना कुछ वीडियो हर एक क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर डलता रहता है और ये काफ़ी हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ये एमए से लेके आपको तब पता ही है कि बीए हो या चाहे 12वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 10वीं हो, 9वीं हो, चाहे 8वीं हो, सभी क्लास के बच्चों के लिए यहाँ वीडियो उपलब्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी इस चैनल के बारे में पता चलेगा, वो भी जो है कुछ इससे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण बात था आपके लिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयर करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूरी होता है कि पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे समय समय पर, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और उस वीडियो से जो है आप कुछ देख सकोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और कई क्वेश्चन आपके अधूरे रह जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए सोचिए नहीं, अपने लिए ही सही चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।